Hello friends, welcome to all. Today our topic is per unit system. In a previous lecture we study about how to find base kVA and base kV for our power system. Now we know that in any transmission line or any power system we have a number of equipment, and for this number of equipment the calculation becomes complicated. So finding the easy way to solve this complicated power system, we have used a per unit system in our power system. So in this lecture we study about per unit system. First we see what is the per unit system. Then we calculate formula for the per unit system. The per unit system, which is a very basic and important quantity in power system, without per unit we have not solved any single question of power system. If I say what is per unit, so per unit which is equal to actual quantity upon base quantity. For any of the parameter we find the value of per unit with this formula, actual quantity upon base quantity. In power system we will see the quantity in actual quantity and base quantity. Now we see the different types of actual quantity, base quantity, and then we find the per unit quantity. Now see here, first we see is the actual quantity. The actual quantity, which is we also called a working quantity or a general quantity. So now actual quantity, first one is in voltage. We are indicated as in V1. Now current, which is I1. A resistance, which is R1. This resistance, which is a resistance of any part of equivalent circuit. Then reactance. Reactance, which is a part of any circuit reactance value. Now next, active power, which is P1. Reactive power, which is Q1. Impedance, which is Z1. These all are the actual quantity or a normal quantity or general quantity or a working quantity. This quantity we are converted into base quantity. With the use of actual quantity and base quantity, then we find the per unit quantities. So now we first see the base quantity. In a base quantity, first one is in a power system mainly a two quantity we can take as an base quantity, or we can assume as an base quantity. First one is in voltage V base, or we can say our apparent power as base. तो पावर सिस्टम के अंदर एक्चुअल में हम दो क्वांटिटी है उसको ही हम जो है वो अज्यूम करते हैं बेस के लिए, यानी कि पहले से अगर जो क्वांटिटी अज्यूम करते हैं बेस जो वो वोल्टेज और एपरेंट पावर की, उसके बाद उन दोनों जो वोल्टेज और एपरेंट पावर है उसमें से हम दो क्वांटिटी जो है वो बेस की मेज़र करते हैं, और वो दो क्वांटिटी है पहले तो करंट, सो बेस करंट यानी कि आई बेस। अब बेस करंट हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है पावर और वोल्टेज का, एस इज इक्वल टू
वी आई। सो यहाँ पर अगर एस बेस विच इज इक्वल टू वी बेस इंटू आई बेस, सो आई बेस विच इज इक्वल टू एस बेस अपॉन वी बेस। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला फाइंड किया, आई बेस इज इक्वल टू वी बेस अपॉन एस बेस अपॉन वी बेस। सो ये हमने जो है वो थर्ड बेस क्वांटिटी जो है वो फाइंड की, लेकिन वो थर्ड क्वांटिटी जो है वो हमारी जो फर्स्ट टू क्वांटिटी है बेस की उसके ऊपर से फाइंड की, यानी कि हम दो ही क्वांटिटी जो है वो बेस जो है वो अज्यूम करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो बेस इम्पीडेंस, बेस इम्पीडेंस यानी जेड बेस। और जेड बेस जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू V अपॉन आई, जेड बेस विच इज इक्वल टू V बेस अपॉन आई बेस। सो जेड बेस विच इज इक्वल टू V बेस अपॉन आई बेस। तो हमने जो पहले जो हमने क्वांटिटी देखी वो एक्चुअल क्वांटिटी देखी, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी क्या है एक्चुअल में, कि जो क्वांटिटी जो है वो हमारे रेगुलर जो है उसमें हम यूज़ करते हैं वो क्वांटिटी जिसकी हम ओहमिक वैल्यू निकालते हैं, और फिर उसकी कैलकुलेशन जो है वो जनरल जो हमारी क्वांटिटी है वो सब एक्चुअल क्वांटिटी है। वो एक्चुअल क्वांटिटी V1, I1, R1, X1, P1, Q1 एंड Z1। यहाँ पर हमें जो क्वांटिटी मिली है वो है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में हम क्या करते हैं कि कोई भी दो वैल्यू वोल्टेज और एपरेंट पावर, या यहाँ पर हम सिर्फ दो वैल्यू वोल्टेज और एपरेंट पावर दोनों की वैल्यू जो है वो अज्यूम करते हैं, और इन दोनों की वैल्यू अज्यूम करने के बाद हम दो बेस निकालते हैं, दूसरे दो बेस करंट के लिए और इम्पीडेंस के लिए, यानी आई बेस और जेड बेस। तो हमारे पास बेस की फोर वैल्यू जो है वो मिल गई, वी बेस, एस बेस, आई बेस और जेड बेस। तो ये चारों जो वैल्यू है वही हम बेस के लिए लेते हैं। यानी इसके सिवा हमने जिस तरह यहाँ पर हमने अलग अलग क्वांटिटी देखी, R1, X1, P1, Q1। तो R1, X1, P1 और Q1 उनकी जो बेस वैल्यू है वो कभी हम हमारे पावर सिस्टम में जो है वो लेते नहीं हैं। यानी कि जो ये सब R1, X1, P1 ये सब की बेस वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है पावर सिस्टम के अंदर। तो ये चार जो वैल्यू है वही पॉसिबल है। अब यहाँ पर जेड बेस इज इक्वल टू वी बेस अपॉन आई बेस हमने लिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम वी बेस इंटू वी बेस अपॉन वी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम वी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और वी बेस से डिवाइड करेंगे। तो वी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, वी बेस डिवाइड करेंगे, तो वी बेस इंटू वी बेस यानी वी बेस स्क्वायर, और वी बेस इंटू आई बेस यानी एस बेस। तो हम जेड बेस जो है वो हमारे जो जेड बेस जो है वो हमारे जो जनरल टू इक्वेशन है उससे निकाल सकते हैं, वी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस से। तो यहाँ पर हमें जेड बेस जो है उसके फॉर्मूला जो है वो मिल गया, यानी चारों जो बेस है वो हमने उसके फॉर्मूला है वो निकाल लिए। तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी देखी, एक्चुअल क्वांटिटी बाद में बेस क्वांटिटी देखी। ये बेस क्वांटिटी टोटल फोर क्वांटिटी है, वी बेस, एस बेस, आई बेस एंड जेड बेस। उसमें से वी बेस और एस बेस जो है वो हम पहले अज्यूम करते हैं, उसमें से हम आई बेस और जेड बेस निकालते हैं, और P1, R1, X1 और Q1 ये सब की बेस वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो हम कंसीडर नहीं करते। अब हम बेस वैल्यू निकाल ली है, एक्चुअल वैल्यू निकाल ली है। अब हम पर यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। So now here we can convert the actual quantity into per unit quantity, and we know that find out the actual quantity
from the actual quantity, per unit quantity, we have an equation per unit which is equal to actual quantity upon base quantity. तो सबसे पहले हम वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं, यानी वोल्टेज इन पी यू। सो वोल्टेज की पर यूनिट निकालने के लिए एक्चुअल वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज। तो एक्चुअल वोल्टेज जो है वो हमने यहाँ पर हमने जो पहले एक्चुअल वैल्यू थी वो V1 और बेस वैल्यू जी थी वो V बेस और ये V पी यू। तो ये हमें वोल्टेज जो है उसकी पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला मिल गया। उसी तरह करंट इन पी यू, यानी एक्चुअल करंट अपॉन बेस करंट। तो एक्चुअल करंट जो है उसकी वैल्यू वो है I1 और बेस करंट जो है वो I बेस, यानी अब ये यहाँ पर हमें करंट जो है उसकी पर यूनिट वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला मिल गया। अब रेजिस्टेंस जो है उसकी पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पर यूनिट, यानी एक्चुअल रेजिस्टेंस अपॉन बेस रेजिस्टेंस। अब एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हम R1 और बेस रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R बेस। लेकिन हमने पहले बताया कि R बेस जो है वो पॉसिबल नहीं है पावर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हम जो R बेस है उसकी जगह पर क्या लेंगे, R1 अपॉन Z बेस, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट निकालने के लिए R1 अपॉन Z बेस। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जो है वो रिएक्टेंस इन पी यू, यानी एक्चुअल रिएक्टेंस अपॉन बेस रिएक्टेंस। तो एक्चुअल जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू X1 और बेस रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू, हमें पता है कि रिएक्टेंस बेस रिएक्टेंस है यानी X बेस जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम Z बेस जो है वो रिएक्टेंस के लिए लेंगे, यानी R पी यू X पी यू विच इज इक्वल टू X1 अपॉन Z बेस। तो हमें रिएक्टेंस जो है उनकी उसकी पर यूनिट वैल्यू जो है वो मिल गई। उसी तरह से हम एक्टिव पावर की बेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्टिव पावर की पर यूनिट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्टिव पावर पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल एक्टिव पावर अपॉन बेस एक्टिव पावर। एक्चुअल पावर को हम P से इंडिकेट करते हैं, यानी P पी यू, और एक्चुअल एक्टिव पावर यानी P1 अपॉन बेस एक्टिव पावर जो है वो यानी P बेस जो है वो हम लेते नहीं है। तो यहाँ पर हम S बेस जो है वो ले लेते हैं, यानी कि एपरेंट पावर जो है वो ले लेंगे। उसी तरह रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो रिएक्टिव पावर इन पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल रिएक्टिव पावर अपॉन बेस रिएक्टिव पावर बेस। तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर पर यूनिट यानी Q पी यू इक्वल टू एक्टिव पावर इन एक्चुअल Q1, और बेस रिएक्टिव पावर जो है वो Q बेस जो है वो हम कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर भी हम S बेस जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू जो है वो मिली एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के लिए जो है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लिखी। अब इम्पीडेंस के लिए फाइंड करते हैं। तो इम्पीडेंस जो Z है इन पी यू इज इक्वल टू एक्चुअल इम्पीडेंस अपॉन बेस इम्पीडेंस। एक्चुअल इम्पीडेंस यानी Z1 और बेस इम्पीडेंस जो है वो उसकी वैल्यू Z
बेस। तो हम जो है जेड बेस की वैल्यू जो है वो कंसिडर करते हैं हमारी जो 4 पैरामीटर्स है बेस के उसमें। तो जेड पी यू जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो है वो हमने फाइंड किया है। अब हमने देखा यहाँ कि हमने जो दो इक्वेशन जो है वो अलग अलग लिए। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्टेज के पर यूनिट फाइंड किया तो V1 V बेस, करंट का फाइंड किया तो करंट I1 I बेस, और रेजिस्टेंस के जो और रिएक्टेंस के जो वैल्यू फाइंड किए वहाँ पर हमने R बेस की जगह Z बेस लिया और X बेस की जगह पर Z बेस लिया। उसी तरह हमने जब हमने एक्टिव पावर की बात की तो यहाँ पर P बेस की जगह हमने S बेस लिया और Q बेस की जगह हमने S बेस जो है वो लिया। पता है कि Z इज इक्वल टू क्या है, R प्लस JX, यानी Z बेस अगर ले तो Z बेस इज इक्वल टू क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस JX1 होगा, जो हम फॉर्मूला यहाँ पर लेते हैं। अगर इसको हम जो है वो Z बेस से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो यहाँ पर Z बेस R1 Z बेस प्लस JX1 Z बेस हो जाएगा। अब ये Z बेस Z1 अपॉन Z बेस जो है वो हमें ZPU मिलेगा, R1 अपॉन Z बेस जो है वो हमें RPU मिलेगा, और जो XL अपॉन Z बेस है वो हमें XPU मिलेगा। यानी ZPU जो है उसकी वैल्यू हम जिस तरह Z इज इक्वल टू R प्लस JX लेते हैं एक्चुअल वैल्यू में, उसी तरह पर यूनिट में भी ZPU इज इक्वल टू RPU प्लस JXPU ले लेते हैं। उसी तरह पावर की बात करें तो S इज इक्वल टू P प्लस JQ है, यानी कि S बेस इज इक्वल टू P बेस S1 इज इक्वल टू P1 प्लस JQ1 होगा। इसको हम S बेस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी S बेस से डिवाइड करेंगे तो P1 अपॉन S बेस Q1 अपॉन S बेस हो जाएगा। और ये जो S अपॉन S बेस है वो हमारा SPU, ये हमारा P इन PU, और ये हमारा QPU होगा। यानी पर यूनिट वैल्यू जिस तरह पावर में S इज इक्वल टू P प्लस JQ लेते हैं उसी तरह पर यूनिट में भी SPU इज इक्वल टू PU प्लस JQ हम लेंगे ना। अब पर यूनिट की वैल्यू जो है वो हम 3 फेज के लिए निकालते हैं। तो 3 फेज सिस्टम के लिए पर यूनिट निकालने के लिए हमें 3 फेज सिस्टम में दो कनेक्शन दोनों के लिए देखना होगा, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यानी स्टार और डेल्टा दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखना होगा। तो पहले हम देखेंगे स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें 3 फेज में जो है वो पर यूनिट वैल्यू जो है वो सभी फाइंड करनी है। तो पहले जो स्टार कनेक्शन होगा तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होगा, यानी कि VL इज इक्वल टू √3 V फेज। हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। उसी तरह करंट जो है उसकी वैल्यू स्टार कनेक्शन में इक्वल होगी, यानी कि IL इज इक्वल टू IPH। अब IL इज इक्वल टू IPH और VL इज इक्वल टू √3 VPH। अब हम VL जो है उसकी पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे। तो VL की पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, VL अपॉन VL बेस। अब VL जो है उसको हम फेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो V1 जो है वो √3 VPH, VL इज इक्वल टू √3 VPH, सो √3 VPH हो जाएगा। उसी तरह VL बेस का √3 VL बेस हो जाएगा, यानी √3 चला जाएगा तो यहाँ पर V फेज अपॉन VL V फेज अपॉन V फेज बेस हो जाएगा, V फेज बेस हो जाएगा। अब V फेज अपॉन V फेज बेस यानी क्या मिलेगा हमें, V फेज इन पर यूनिट। तो VL पर यूनिट, तो यहाँ पर हमें देखा कि VL पर यूनिट जो है वो V फेज पर यूनिट इक्वल है, यानी स्टार कनेक्शन में VL इज इक्वल टू √3 VPH एक्चुअल क्वांटिटी में मिलता है हमें,
लेकिन जब हम पर यूनिट में लेते हैं तब हमारी जो लाइन का पर यूनिट है और फेज का पर यूनिट है, दोनों हमें इक्वल वैल्यू जो है वो मिलते हैं। उसी तरह करंट की अगर हम बात करते हैं तो करंट में क्या है कि हमारा करंट आई एल पी यू, अब लाइन पी यू जो है यानी आई एल, एक्चुअल आई एल अपॉन बेस आई एल। अब इसको जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में वो आई एल इज इक्वल टू आई पी एच है, यानी हम आई पी एच भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह आई पी एच बेस, तो आई पी एच अपॉन आई पी एच बेस यानी आई पी एच पी यू, यानी आई फेज पी यू। तो करंट आई एल पी यू विच इज इक्वल टू आई फेज पी यू, यानी लाइन करंट और फेज करंट दोनों की पर यूनिट वैल्यू हमें इक्वल मिलती है। यानी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में हमारे जो वोल्टेज है और करंट दोनों की लाइन और फेज दोनों की पर यूनिट वैल्यू हमें इक्वल वैल्यू मिलती है। अब हम Z जो है Z बेस फाइंड करेंगे। Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो Z बेस जो है हमारे पास इक्वेशन है, हमने सिंगल फेज जो है उसके लिए फाइंड किया था। Z बेस इज इक्वल टू V बेस सिंगल फेज के लिए, V बेस होल रेज़ टू स्क्वायर डिवाइड बाय एस बेस। अब यहाँ पर V फेज स्क्वायर अपॉन एस बेस, एस पर फेज जो है वो हमें सिंगल फेज में जो है Z की वैल्यू हम लेते हैं, यानी इसकी हमें 3 फेज वैल्यू निकालनी है तो Z बेस। अब यहाँ पर वी पी एच स्क्वायर है तो 3 फेज के अंदर हमें 3 इंटू वी पी एच स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3 इंटू एस पर फेज जो है वो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 जो है वो अंदर जो वी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी √3 वी पी एच होल रेज़ टू स्क्वायर हमें मिलेगा, और एस पर फेज इंटू 3 यानी हमें 3 फेज पावर जो है वो मिलेगा। या √3 वी पी एच जो है वो हमारा लाइन वोल्टेज मिल जाएगा, यानी लाइन वोल्टेज स्क्वायर अपॉन एस 3 फेज। तो हमें जो है वो Z बेस की वैल्यू जो है वो 3 फेज के लिए VL स्क्वायर बाई एस 3 फेज जो है वो मिलती है। अब यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के लिए है, और जो ये पावर है वो 3 फेज पावर है। यानी अगर एग्जांपल में कोई भी वैल्यू हमें दी गई हो तो हमें जो भी वैल्यू दी गई वो हमें लाइन वोल्टेज ही कंसीडर करेंगे और 3 फेज पावर ही हमें दिया गया होगा। अब जो है वो हम पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं एक्टिव पावर के लिए 3 फेज के अंदर। अब पर यूनिट वैल्यू जो है एक्टिव पावर की निकालने के लिए, सो P पर यूनिट विच इज इक्वल टू P1 अपॉन एस बेस। तो हमें सिंगल फेज के लिए ये इक्वेशन जो है वो हम कंसीडर करते हैं, तो वही इक्वेशन पर यूनिट के अंदर हमें P1 अपॉन एस बेस जो है वो इक्वेशन मिलेगा। यानी P1 की वैल्यू 3 फेज के लिए और एस बेस की वैल्यू 3 फेज के लिए हम फाइंड करेंगे। तो पहले सिंगल फेज हम लेते हैं, तो सिंगल फेज में हम जो पावर है P1 उसकी वैल्यू लेते हैं V1 I1 cos ∅1। अब वही पावर की बात हम 3 फेज के लिए करें, 3 फेज में पावर की वैल्यू हम अगर लाइन वोल्टेज लिया तो √3 VL IL cos ∅ कंसीडर करते हैं, और अगर हमने यहाँ पर फेज वोल्टेज लिया तो √3 3 इंटू वी फेज आई फेज इंटू cos ∅ कंसीडर करते हैं। यानी अगर लाइन वोल्टेज में √3 मल्टीप्लाई √3 VL IL cos ∅, और अगर फेज वोल्टेज लिया तो 3 VPH IPH cos ∅ जो है वो एक्टिव पावर की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। अब हमें पर यूनिट फाइंड करने के लिए एक्चुअल पावर, ये हमारे पास एक्चुअल पावर है, उसको एस बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो अब एस बेस जो है उसकी 3 फेज में वैल्यू निकालते हैं। एस बेस यानी एपरेंट पावर है हमारा, एपरेंट पावर यानी VL इंटू V इंटू आई, यहाँ पर 3 फेज है तो 3 इंटू VL इंटू IL। हम बेस वैल्यू निकालनी है तो VL बेस इंटू IL बेस, और उसी तरह हमें 3 इंटू VPH बेस अपॉन आई फेज बेस। तो
पहले हमने पावर जो 3 फेज में निकाला और लाइन वोल्टेज के लिए और फेज वोल्टेज के लिए। उसी तरह हमने एस बेस जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए वी एल बेस आई एल बेस इक्वेशन लिया, तो √3 वी एल आई एल बेस। और अगर फेज वैल्यू में कंसिडर करना हो तो 3 फेज बेस आई फेज बेस। अब ये दोनों इक्वेशन जो है उसके लिए पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर पर यूनिट पावर इन पर यूनिट यानी P1। तो पहले जो हम लाइन वोल्टेज कंसिडर करते हैं, सो वी एल आई एल कोस फाई। तो यहाँ पर बेस वैल्यू जो है वो लाइन वोल्टेज लाइन क्वांटिटी के लिए √3 वी एल आई एल बेस। अब √3 तो यहाँ पर वी एल आई एल कोस फाई अपॉन वी एल बेस आई एल बेस इंटू कोस फाई। तो वी एल बाई वी एल बेस यानी वी पी यू आई पी यू कोस फाई। पी यू इज इक्वल टू वी एल, सो वी एल बाई वी एल अपॉन वी एल बेस यानी वी एल पी यू, आई अपॉन आई एल बेस यानी आई एल पी यू कोस फाई। यानी हमें पर यूनिट वैल्यू जो है वो मिल गई है लाइन वोल्टेज एक्टिव पावर के लिए। अब हमें फेज वैल्यू में फाइंड करना है, तो पी पी यू फेज वैल्यू में इक्वेशन है 3 वी पी एच आई पी एच कोस फाई अपॉन 3 एस बेस की वैल्यू 3 वी पी एच इंटू आई पी एच बेस। सो यहाँ पर वी पी एच अपॉन वी पी एच बेस यानी वी पी एच पी यू 3 जो है वो चला जाएगा, आई पी एच अपॉन आई पी एच बेस यानी आई पी एच पी यू और कोस फाई। सो पी पी यू इन बेस हमें मिलेगा वी पी एच पी यू वी पी एच आई पी एच पी यू इंटू कोस फाई। तो ये हमें जो है वो स्टार कनेक्शन है उसके लिए सारे इक्वेशन हमें मिल गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो किसी भी हमें इक्वेशन जो डिराइव किया है वहाँ पर हमें 3 और √3 की वैल्यू जो है वो हमें एक्चुअल क्वांटिटी में हमें मिलती थी, लेकिन कहीं पर भी हमें पर यूनिट जब वैल्यू फाइंड की तो कहीं पर भी हमें √3 या 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में मिलता नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डेल्टा कनेक्शन के लिए देखेंगे और फिर बाद में हम कैसे जो एक बेस में से जो हमने पर यूनिट वैल्यू फाइंड की है उसका कन्वर्जन दूसरे बेस में कैसे करते हैं वो, और पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो देखेंगे। थैंक यू।